بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ افغانستان میں طالبان کی شاندار وکٹری کے بعد امریکہ کی ذلت میں شکست اور پاکستان پر اس کے اثرات، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن پاکستان میں پی ڈی ایم نے جو کراچی میں جلسہ کیا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نئی مہم جوئی کا عندیہ دیا ہے کہ روڈ شو بھی کریں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ دوبارہ ہوگا۔ یہ اہم موضوع ہے کیونکہ اس وقت افغانستان میں جو انریسٹ ہے اس کے اثرات پاکستان پر چل رہے ہیں اور آئندہ کیا ہوگا، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور میاں شہباز شریف صاحب نے وہاں تو جو تقریر کی سو کی، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہ ہم مفاہمت اور نہ ہی مزاحمت، 2023 کے الیکشن میں ہم جو ہے وہ الیکشن بالکل غیر جانبداران چاہتے ہیں۔ مراد بھٹو زرداری صاحب نے عجیب بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کراچی میں ان کا جلسہ بالکل ناکام ہو گیا ہے اور مسترد کر دیا۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ ڈاکٹر محمد مدنی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں، ایئر مارشل جنرل محمود خان صاحب ہیں، ڈاکٹر خواجہ احسن صاحب اور رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ ایسے موقعوں پر جب یونٹی کی ضرورت ہے، سرحدوں پر صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، حالانکہ طالبان نے تو یہ کہا کہ کوئی بھی ٹی ٹی پی ہے پاکستان میں ہم ایسی چیز کی اجازت نہیں دیں گے اور یہاں سے ایسی کوئی کارروائی جو ہے اس کی ہم مخالفت کریں گے، لیکن وہ بھی جاری ہے۔ لیکن کراچی میں جلسے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی نہ تو الیکشن کا نزدیک ہے نہ کچھ ہے؟ دیکھیں، حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو اب کے نعرے لگانا بند کر دیں، انہیں بھی موقع دیا جائے، انہیں بھی ڈائیلاگ کے لیے تیار کیا جائے، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ مارچ، جلسے، جلوس، اب اس کی قوم کو ضرورت نہیں ہے۔ قوم کو کوئی اور راستہ چاہیے، قوم کو ترقی چاہیے، قوم کو بحالی چاہیے، معیشت کی ترقی چاہیے، بے روزگاری اور غربت میں کمی لانا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں۔ ابھی میں جس ٹریفک سے گزر کے ہیں، یہ بھی ذمہ داری جہاں حکومت کی ہے وہاں اپوزیشن کی بھی ہے۔ نشاندہی کریں اور اس کے لیے حکومت کو مجبور کریں کہ وہ جو بقیہ 2 سال ان کے ہیں اس کو وہ جو ہے نا ان کے مسائل حل کریں عوام کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہی نہ تو وہ کیا کرے؟ نہیں، حکومت تو بیٹھی ہوئی، حکومت کہاں گئی بھی ہے؟ میں نہیں سمجھتا، یقین کریں۔ افغانستان پر تو انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا نہیں، افغانستان پر بھی جوائنٹ سیشن بلانے کے لیے حکومت نے عندیہ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری 3 سالہ پیچھے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی اور بتائیں کراچی میں جلسہ کرنے کی تو کیا تھی جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ جلسہ پیپل پارٹی کے خلاف تھا۔ نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے اس کے خلاف تو یقینی طور پر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سندھ کے عوام کی جب وہ ہمدردی چاہتے ہیں پی ڈی ایم، سندھ میں چونکہ ایک اکثریتی جماعت ہے، حکومتی جماعت ہے پیپلز پارٹی، تو اس کے خلاف کیا انہوں نے وہ بنیادی طور پر تو جو جلسوں میں ان کی زبان بھی تھی، جو ڈائلاگ تھا، اور جس طرح وہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی اسلام آباد میں تو نہیں ہے نا۔ پیپلز پارٹی تو جو ہے وہ سندھ میں ہے، وہ چڑھائی کی بات جو کی جا رہی ہے، مارچ کی جو بات کی جا رہی ہے، وہ تو اسلام آباد کی طرف کی جا رہی ہے، اس کا پیپلز پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری جانب آج وہ جو بلاول ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو بیوقوف اور نادان دوست ہے جنہوں نے ہمیں پھنسایا ہے۔ دیکھیں سر، اصل بات کیا ہے، پاکستان جو ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل امپورٹنس کی طرف چلا گیا ہے۔ اس کی کل میں انتہائی مجھے خوشی ہوئی، میں نے پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں ایک سین دیکھا ہے کہ امریکی فوجی، برطانوی فوجی اور بہت سارے دوسرے سویلین بھی، فارنرز بھی، مختلف اداروں، مختلف جو سفارت خانوں کے لوگ تھے، وہ پاکستان سے متمنی تھے کہ ان کو ویزا دیا جائے اور ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، اور وہ ایک باقاعدہ اجازت چاہ رہے تھے کہ ہمیں چند روز یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کی یہاں ٹھہرنے کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے ملک کو جا سکیں۔ یہ سٹیٹس تو پاکستان کو یہ کہتے ہیں یہاں سے فلائٹیں مسقط بھی جا سکتی تھی۔ جی سر، یہاں سے فلائٹیں مسقط بھی کوئی دور نہیں ہے۔ نہیں سر، یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا ایک رول ہے، ایک دلیری، ہمت اور ایک کریڈیبلٹی پاکستان کے سیائی۔ دیکھیں، جس کا جو جائز کریڈٹ ہے وہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی مسلح افواج نے مل کر جو ایک فضا قائم کی ہے، اور جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو ایک لیڈرشپ کوالٹی کا اظہار کیا ہے، بلکہ ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پہ جو باتیں کہی ہے وہ سچ ثابت ہو رہی ہے نا۔ دیکھیں نا، ایبسلیوٹلی نوٹ کہا، اب لطیفے آپ جتنے مرضی بنا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے 47 سے لے کے اب تک کہ امریکہ کو کسی نے ایئرپورٹ پہ کھڑا کر دیا،
اور وہ فوجی ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کے ٹرالیاں گھسیر کر ایئرپورٹ سے باہر آ رہے ہیں. ایک مناظر ہم نے کب پہلے دیکھے تھے سر؟ یہ قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا. بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لمحات کو ریکارڈ کر کے حکومت کو دکھانا چاہیے. اس سے بڑی کوئی پاکستان کی جو ہے خود مختاری اور جو ہے وہ ایک کی بالادستی کا کوئی اور ثبوت ہو نہیں سکتا. جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کامیابی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ 44 کنٹریز جو ہیں وہ انکلوڈنگ پوری یورپی یونین وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں آپ یہاں سے ہماری ہیلپ کریں. ان کے پرائم منسٹر ہمارے پرائم منسٹر کو فون کر رہے ہیں. ماشاء صاحب یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کافی کہا ہے کہ ساری دنیا کو اب ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو فخر والی بات. لیکن جو اب بھی ان کی طرف سے جو ہمیں یعنی ریئیکشن مل رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یو کے نے تو ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. اور امریکہ کا جو بائیڈن جو آج کا بیان ہے وہ پاکستان سے سخت ناراض ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے پھر دوہرا کردار ادا کیا. طالبان کی جو حمایت اور ہمدردی اور سپورٹ رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں ذلت میں شکست ہوئی ہے. دیکھیے یہ جو بائیڈن صاحب وہی ہیں جس نے کیری لوگر کے ساتھ بنایا تھا پھر بعد میں الگ چلا اسی کا بیبی تھا جی. اور یہ وہ شخص ہے اب آؤٹ آف شیئر جسے کہتے ہیں نا کہ وینجنس ٹیلی فون کال نہیں کرنی ہر دھرمی جسے کہتے ہیں اس شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کرتا نہیں سنتا نہیں. جب بالکل ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں. ان کے لیڈر نے بھی کہا ہے نا قائد نے ان کے کہ ایک سنتا نہیں لیڈر. دنیا میں 2 لیڈر ہیں, ایک سنتا نہیں ایک کرتا نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اب بات جو بائیڈن کی ہو رہی ہے اس شخص نے اپنے ملک میں جب اس کے اوپر مشکل وقت آیا ابھی چند دن تو ہوئے اس کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جنوری میں اس نے حلف اٹھایا تمام بلیم اس کے پریڈیسیسر کے اوپر ایگزیکٹلی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. اس نے اپنی جہاں اچھی بات ہوتی ہے یہ میں نے کر دیا. یہ 20 سال کی جنگ میں یہ چند ہفتے یا 4-8 مہینے اس بندے کا کردار کیا رہا ہے. وہ بھی جب تقریباً چیزیں سیٹ ہو گئی تھی اس کو زیادہ کریڈیبلٹی نہ دیں نہ سوچنے کی بات ہے. البتہ امریکہ کا جو رول ہے اور مومنٹم جو چل رہی ہے سپر پاور ہے تمام میجر آرگنائزیشن میں میجر رول پلے کرتا ہے. نام لے لیتا ان کا یونائٹڈ نیشنز ورلڈ بینک IMF FATF وغیرہ جس سے پاکستان پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے اور وہ کرے گا اور اس نے کیا ہے. ہم FATF میں جو ہمیں رکھا گیا ہے یہ سوائے امریکہ کے ہر دھرمی کے اور انڈین اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں ہے. جتنے کلین اور جتنے اچھے اقدامات پچھلے 2-3 سال میں ہوئے ہیں دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیے اور 40 میں سے ایک رہ گیا ہے اور وہ بھی چھوٹا ہے. جماعتوں پر پابندی بھی لگائی اور سارا. تو دوسرے آپ کا سوال دوسرا بھی تھا کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یہ ایک ڈیلی چینجنگ سبجیکٹ ہے. کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں. جب افغانستان میں انریسٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے مہمان نوازی کر رہے ہیں ان کو ایکسیس بھی دے رہے ہیں اچھا جیسے جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کا ہمیں مل کیا رہا ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ بیج آج اگائیں گے تو کسی کا پھل کل نکل آئے گا کسی کا پھل 20 سال بعد نکلے گا. آپ کھجور کو دیکھ لیجئے بینگن کو دیکھ لیجئے مشکل چیز ہے. وہ 6 مہینے میں آپ سبزی مارکیٹ میں لے آتے ہیں اس کو 20 سال لگتے ہیں وہ 100 سال 200 سال 400 سال چلتی ہے یہ 6 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے. آپ جب دنیا کے تناظر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو تاریخ اور جغرافیہ کے حساب سے دیکھیے. اس میں اگر طالبان نے اپنے آپ کو سنبھال طالبان کی حکومت اب بند کیوں نہیں رہی کیونکہ اس میں کنسنسس نہیں ہو رہا یا جلد بازی میں جس طرح کام نہیں کیا گیا تھا ہم لوگ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہوں. دیکھیے انہوں نے 20 سال کی جنگ لڑی ہے اور اس میں نام بھی کمایا مگر اس سے زیادہ بدنامی کمائی. جہاں کوئی غلط بات ہوتی ہے دہشت گردی ہوتی ہے آگے پہ تو یہ طالبانائزیشن ایک زبان میں لفظ آ گیا. یہ یاد رکھیے یہ جو طالب ہیں یہ وہ نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھے اور اس سے پہلے جو مجاہدین تھے جن کی آف اسٹریم کیا ہے وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی پردے کے بغیر نہیں ہوگا اور انہوں نے کافی کہا یہ سزائیں انہوں نے اناؤنس کی. ٹوٹلی آئی ڈس ایگری. پردے کے بغیر آپ دیکھیے پہلے تعلیم نہیں تھی انہوں نے کہا تعلیم ہوگی اور تعلیم اتنی حاصل کریں گے اتنے انسان بندے کریں گے. فرق یہ ہے کہ ان کے لیے الگ وہاں جو کامیاب ہو گئے طالبان پاکستان میں ظاہر مدرسوں کی جو تعداد ہے مولانا شاہ نورانی اور رویس نورانی ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جو شروع کر لی ہے سلسلہ
इसको किस नज़र से देखते हैं कि भाई यहाँ भी कोई इस तरह का कोई मुहिम जो आपकी ये नज़र में है? अवैस नूरानी ये वही शख्स है ना जैसे टेलीविजन पे पाकिस्तान आके का। बलूचिस्तान की बात की थी, इस शख्स का नाम न लीजिए, ये पाकिस्तान का दुश्मन है ये। देखिए अभी जो कराची में बहुत बड़ा जलसा नज़र आ रहा है टीवी के ऊपर, 90% जो तालिबान के वो हमारे तालिबान हैं, मीनिंग स्कूलों के मदरसों के बच्चे हैं ये। मुझे बताइए कि जो बच्चे तालीम के लिए आए हैं, जिनकी आपने परवरिश करनी है, आप उन्हें इस उम्र में सियासत में लाएंगे, आप अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी या बुरी। और एक और बात मैं आपको करूं, मौजू पे है, फिर आई डोंट वांट टू मोनोप्लाई द टॉपिक। वो जो जलसा था आपने देखा होगा, उसमें झंडे ही झंडे थे। मैं देखता रह गया, चैनल बदल बदल के एक शख्स को, उसको इतनी हिम्मत ना हुई कह सके कि देखो सारे झंडे नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आ रहा। ये डूब मरने वाली बात है। ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जी राणा साहब, कैसा देखते हैं कि जो कराची आपने जलसा किया, तो आपकी तादाद तो असल तो पंजाब जो है वो सारे लोग मानते हैं कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जहाँ जलसा कामयाब होता है कि वहाँ आप जब मुस्लिम लीग नून कराची में जाती है तो पीडीएम में पीपल पार्टी निकल चुकी है, और वहाँ सारे झंडे जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के नज़र आते हैं। तो वहाँ जी एम्बेरस नहीं होती कि भी किस किस्म का ये जलसा था कि पीपल पार्टी ने तो कहा है कि वो नाकाम हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का, आपके पूरे पैनल का। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरहदों के हिफाजत करने वाले हमारे बहादुर बेटे, अफवाज पाकिस्तान के बेटे, जो अफ़गानिस्तान से बाजौड़ के मकाम पर हमारी फ़ौजी चौकी पर हमला करते हैं और हमारे 2 नौजवान शहीद होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और वो हमारे बेटे हैं, कौम के बेटे हैं, सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और मुझे इसी बात पर जो तालिबान गवर्नमेंट ने या जो सिस्टम जो भी सेटअप है अफ़गानिस्तान में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था, अब मेरी समझ से बालातर है कि उन्होंने फरमान जारी किया था कि उधर से हमारी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और यहाँ बैठे हुए हुक्मरान इसी बात पर शाजियाने बजा रहे थे कि हम महफूज हैं। अच्छी बात है, हमें इन चीज़ों का जो पिछले तजर्बे हैं उससे एक ऐसा रिजल्ट मिला कि जब एपीएस के बच्चे अल्लाह को प्यारे होते हैं तो मास्टरमाइंड अफगानिस्तान था। उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहेल शरीफ साहब सेम डे पेशावर जाते हैं और फिर वो अफगानिस्तान से राब्ता अफगानिस्तान में वो कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई होती है। ये होता है टेकअप करना, एक्शन लेना। और मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ, अफगानिस्तान वाले हमारे भाई हैं, पहले 35-40 लाख के करीब हैं जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और आज भी जब हमारे अदारे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे बड़े बड़े तलीमी दरसगाहें, हमने अपने तुलबा से हॉस्टल खाली करवा लिए हैं उनके लिए। और जब हम कहते थे कि फला आदमी वीज़े के बगैर पाकिस्तान आता है, तो आज अमेरिकन फौजी या नीटो फोर्सेस के जो जिम्मेदार हैं उनके वीज़े आया इशू हो चुके हैं या भी होने हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये एक सवालिया निशान है। मैं भी पाकिस्तान पूछना चाहता हूँ, अगर हुए हैं वेल डन, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ये अर्ज करूँगा कि ये आज मेरा सवाल बनता है कि अगर पिछली गवर्नमेंट ठीक नहीं थी तो हमारी मौजूदा हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने आते ही शाह महमूद कुरैशी को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम देकर अफगानिस्तान क्यों गिफ्ट भेजा? और वो गिफ्ट देने के बाद वो जमीन हमारे साथ जो भी सलूक होता रहा वो तारीख गवाह है कि इंडियन, लेकिन राणा साहब फायदा जो उसका मिल गया है, वो तालिबान उस तरह पुरतशद्दद पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो पाकिस्तान के मार्शल साहब ने कहा लेट भी निकलता है। मैंने तो ये सवाल ही नहीं किया, मैंने तो एक अर्ज की कि वहां से हमला होता है, हमारे 2 प्यारे बेटे पाकिस्तानी शहीद होते हैं। वहां जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब 2 हफ्ते पहले हम इस्लामाबाद में उनके लिए कॉन्फ्रेंस की डेट डिक्लेयर कर चुके थे अशरफ गनी साहब के लिए और उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए, और फिर वो पोस्टपोन होती है। तो खारजा पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या इंडियन प्रेसिडेंट हो, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक सुपर पावर है और वो पाकिस्तान है। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम लीग नून सुपर पावर है, नहीं,
पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम, देखो ना, जब इंडिया ने 4 धमाके 12 मई 2098 को किए थे तो पाकिस्तान की आवाम समझती थी कि पाकिस्तान एटमी ताकत डिक्लेयर हो, और 28 मई 1998 को मियां नवाज शरीफ तकरीर के बाद भी तो है ना उन मुल्कों के लिए कि हम एटमी ताकत हैं। पाबंदियां लगी, लेकिन उस वक्त अफवाज पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। 100 हमारे ऊपर सवाल करें, हम तमाम कुछ सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती थी, जो 16 जून 2014 को राणा साहब आप भी जैसे कोलिशन बनाते हैं, आप हुकूमत को चलो क्या है वो दुरुस्त है कहना चाहिए, जब आप कोलिशन बनाते हैं आपको ये नजर नहीं आता कि जब पाकिस्तान में अनरेस्ट होती है, जो बाइडन हमारे खिलाफ होता है, एटमी जो हसासी हैं उनके लिए वो फिक्रमंद होता है, ये 11 रातों में चले जाएंगे, FATF हमारे खिलाफ है, तो फिर बिलावल भुट्टो भागवा के जो अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं, लाभी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, बिलावल जाता है, ये बिल्कुल उनसे सवाल आपको करना चाहिए, या इमरान खान साहब जाते हैं जब वो नहीं, मैंने ये सवाल किया कि फिर आपकी जो क़यादत है ये मुशावरत में कमजोर है कि बिलावल भुट्टो के साथ आपका सवाल मुझसे नहीं बनता, क्योंकि बिलावल PDM का हिसाब नहीं है। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, मैं शक की निगाह से नहीं देखता, लेकिन सब मुहब्बे वतन होती हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब इमरान खान साहब जाते हैं यूएनओ में और ट्रंप से मिलकर जब इस्लामाबाद रात को कहते हैं कि एक वर्ल्ड कप मैंने जीता था 1992 में और एक आज अचीवमेंट लेके आए, फिर जब ट्रंप को सारसी बनाते हैं मकबूजा कश्मीर में, तो आज 756 दिन हो गए हैं कश्मीर पर का स्टेटस खत्म हुए, तो आज हम कहां पे जो जुमातुल मुबारक के दिन इमरान खान साहब आधा घंटा या 1 घंटे वो स्ट्राइक होती थी या रैली निकालते थे या कुछ, आजकल वो बंद क्यों हो गई है? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कश्मीर भी हम सब का है, पाकिस्तान भी हम सब का है, और हमने ये नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट पे हमला मैंने जाना साहब की तरफ, आप मुझे ये बता दें, आप लोगों को ये बताएं कि आप लोगों को मुस्लिम लीग नून कंफ्यूज क्यों कर रही है? एक आपने वहां कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, और वो PDM की प्रेसिडेंट कर रहा था मौलाना फजल रहमान। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि 2023 में हम जो इलेक्शन है ना वो ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, तो फायदा क्या हुआ, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? तो इकबाल साहब इसमें गलत बात कौन सी है? 2023 नहीं, आज भी मैं चाहता हूं कि जो भी ज़िमनी इलेक्शन हो वो फेयर एंड फ्री हो, आज भी हमारी ये डिमांड है। लेकिन मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग और मशीन सिस्टम को लाकर मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेंस जारी करना, जो अदारा जो मैं स्टेक होल्डर उसको ऑन बोर्ड ना लेना और फिर पार्लियामेंट में डिस्कस ना करना, ये रवैया मुनासिब नहीं है। जी डॉक्टर साहब, वजह यह है कि आप भी खुश फहमी में मुब्तला हैं, 3 साल गए गुजर और आप लस्सी पी के सोए हुए। फवाद चौधरी ने कहा कि अगले 7 साल भी अपोजिशन ऐसे ही फिरती रहेगी, आदमी को पता नहीं चलता, कई हुकूमतें उन्हें बदल दी, देखी रात को पता ही नहीं होता था सुबह बदल जानी है। अब यह है कि हर वक्त ठट्ठा और मजाक उड़ाते रहना और अपनी कारकर्दगी को बेहतर ना करना। आखिर कब तक आप आवाम को इस इम्तिहान में डाले रखेंगे कि वो गुड गवर्नेंस नहीं है? अफगानिस्तान का मसला हमारे साथ मौजूद है, आप अपोजिशन को आप एतमाद में नहीं लेते, तो क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि जो हमारा इंटरनेशनल रोल रहा है, आपकी बात सही है, एयर मार्शल साहब ने भी सही फरमाया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक रिमार्केबल चैप्टर लिखा जाएगा इंशाल्लाह, जो कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने, शाह महमूद साहब ने और हमारे अदारों ने जिस तरह से प्ले किया पॉजिटिवली, और मैं पूरी कौम की तरफ से मैं जो बाइडन को जो है मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, हमें लगता था कि वो एक सफ़ेद पोश आदमी हैं और उन्होंने गुर्बत का और बाकी चीज़ों का मतलब देखा हुआ है, तो वो दुनिया के अंदर इंसाफ और इंसानियत के साथ खड़े होंगे। इसमें क्रेडिट भी है, मैं ओपन हार्टेडली मैं कहता हूँ कि देयर इज़ क्रेडिट ऑफ जो बाइडन एज वेल। ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो रही है और तसादम की तरफ नहीं जा रहा, वी शुड नॉट किल द ह्यूमैनिटी, और उसको जो है ना हमें ऑनर करना चाहिए, और ये पॉजिटिव मैं तरफ समझता हूँ जा रहा है मामला। और इसमें जो है पाकिस्तान को जो है जो बाइडन शुड नॉट हिट पाकिस्तान, जो बाइडन ने कर रहा है, और ये जो रेड लिस्ट है में यूके नहीं निकाल रहा है, इंडिया का कंपैरिजन करें वहाँ 5.5 लाख के करीब है, हमारे 26,000 बताया डाटा है। बिल्कुल
यूरोप को भी जो है ये समझना चाहिए, उनको भी अपना पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आते हैं कि ये मौजू जो है ना आपसे जो सवाल की, इसी सवाल का जवाब लेंगे नाज़रीन डॉक्टर मदनी साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। बात डॉक्टर मदनी साहब आपसे हो रही थी कि इस वक्त जो सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में, तालिबान यानी फतेह तो हासिल कर चुके, अभी जो मौलाना हैबतुल्लाह खान साहब अखवंदज़ादा हैं वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आए, यानी कहते हैं कि महफूज है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बन रही, पाकिस्तान जो है वो राजदारी बना हुआ है, वो बेतहाशा मसाइल हैं। इन हालात में पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले रही, सेशन स्पेशल कोई नहीं हुआ, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनका क्या एजेंडा है, अल्लाह अलम बिस्वाब, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो तालिबान के असरात पाकिस्तान पर तो आ सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी पाकिस्तान क्रिटिकल और मुश्किल सूरत हाल में है, अंदरूनी और बैरूनी। मगर मैं आपको बताऊं, मैं आज देख रहा था उनका जलसा, उनकी वाज़ो वईद और वो मगरमच्छ के आंसू, ये इतने बेरहम लोग हैं, इनको कोई एहसास नहीं है। मैं बिल्कुल दयानतदारी से बात करूँगा, नहीं अपोजिशन हो, बिल्कुल हो, मगर पॉजिटिव अपोजिशन हो ना जी। ये भेड़ की खाल में किस चीज़ पर ढोल बजाएं, ये मुझे बता दें, आवाम को क्या आपने दी, किस चीज़ पर ढोल बजाएं? बात ये है, जो अच्छी बातें हैं गवर्नमेंट की उसमें आए, सपोर्ट करें, उनका वो एजेंडा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए। क्या ये जो आज वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, बच्चों को उठा के वहाँ पर लेके आए और वहाँ पर वाज़े वईद की, कौन सा इधर यहाँ जहाज चल रहा है, कौन सा जो है इस्लाम मुखालिफ हुकूमत कर रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। इस किस्म का गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना, किसके एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं? इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया और सारा पाकिस्तान ये समझता है कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी जलाते थे। मुझे बताइए, आप बिजली भी जला सकते हैं? मुझे बता दें। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं, ये जिस तरह का गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए इनका पैसा जो है कि बंदे बनो, हाँ, इनका पैसा जो है वो इनका खुदा है। जो ये इनकी हरकतें हैं, मौलाना फजल रहमान में ना मौलाना है, ना फजल है खुदा का, और ना ये इंसानियत के लिए फजल है, और ना रहमान के बंदे वाली हरकतें हैं। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात कुछ और हैं। नहीं, अपनी हुकूमत को कोई बताए ना, कोई हम तो शर्म आनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये कहता हूं, हमें भी शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें भी शर्म आनी चाहिए। हमारी सफ़ों में इमरान खान साहब की हद तक वहाँ पर क्लैरिटी और इसार मौजूद है, इदारों में भी ऊपर के लेवल पे मौजूद है। उन सारी उन काली बेड़ों को शर्म आनी चाहिए जो अदारों में बैठे वो स्पॉइल करते हैं, लीडरशिप हमारी को ख़राब करते हैं, और पाकिस्तान के मुजरिमों के साथ वो मिल के काम खराब करते हैं। बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैं एक और स्टेप आगे करता हूं, उन लोगों की रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए जिन लोगों ने पाकिस्तान को पिछले 30 साल से नोचा है, निचोड़ा है, अभी तक वो बाज नहीं आते। अदारों में वो पैसे फेंक के चीजें मलाइन कर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही हेल्थ का एक डिप्टी सेक्रेटरी 30 करोड़ रुपए का मुझे पता चला कि वो नैब के साथ गिटमिट करके डायरेक्टर के साथ वो खा गया। वो पैसे अवाम के थे। गालियां किसको पड़ेंगी? इमरान खान को पड़ेंगी। हर महकमे के इस तरह का पाकिस्तान का और इंसानियत का गद्दार मौजूद है। आप बताएं, ये लोग जो है ये वेल कनेक्टेड होते हैं। क्यों रखे हुए आपने? देखें, मैं ये हमारे हाथ में हो तो एक दिन में वो काम करें जो कि तालिबान ने किया है कि 2 दिन में लटका के तो उसके बाद जो है उनको इबरत का निशान बनाया जाए, जो इंसानियत का खून निचोड़ते हैं। लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम मौजूद है। आप जुमला मुकम्मल करें ना, तो क्यों नहीं कर रहे ये भी तो बताएं सब। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ, ये इस पे हमें हमारी कमजोरी है। मैं बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, इमरान खान साहब के एंड पे नहीं है। देखो आपने बड़ी जिद्दोजहद की है डॉक्टर मदनी साहब ने। मैं ये कहता हूँ इस वक्त सरकारी इदारों में वहाँ पब्लिक आदमी नहीं घुस सकता, उसको काम नहीं करवा सकता, और फिर ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी को एक्सेस ही नहीं रही। आप बात सही कह रहे हैं। ये 50% ऐसे सरकारी मुलाजमीन में ऐसी काली बेड़े हैं। ये आमतौर पे सियासी लोग नहीं बात करते, क्योंकि हमने एक लंबी जद्दोजहद बेलौस काटी है। अल्लाह की तौफीक से हमारी क्या औकात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन लोगों को चॉकआउट करना चाहिए और उनको उठा के बाहर फेंकना चाहिए। सिर्फ बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उनका लूटा हुआ पैसा आवाम के ऊपर लगाना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए सर, आप देखो ना, ये वो आवाज है
جو پی ٹی آئی کی کسی جماعت کے کارکن کی ہوتی ہے، جنہوں نے کارکن کی نہیں سر، میں یہ لفظ معذرت کے ساتھ، یہ پوری قوم کی آواز ہے، ہر محب وطن پاکستانی کا اور انسان کے بچے کی آواز ہے سر بڑی مزکہ صورتحال ہے، پاکستان جا آ رہا ہے، اور یہ جو مسلم لیگ نون، بڑی معذرت کروں گا رنگا صاحب سے کہ کہاں پہ کس طرف انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے خدا کے لیے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو پہلے مواقع مل چکے ہیں انہیں ڈیلیور کرنے کے مواقع ملے، 2 3 4 مرتبہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم رہ گئے، پارٹیاں بنا لی، سارے صوبوں پہ تسلط رہا، آزاد کشمیر میں ان کی حکومتیں رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مان لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہی، کون سا کام نہیں کرنے دے رہی وہ؟ نہیں دیکھیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلم لیگ کام نہیں کرنے دے رہی، کام تو یہ نہیں کر رہے، یہ خود نہیں کر رہے، یہ ان کا قصور ہے حکومت کا. میں یہی تو بات اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ خالی یہ اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کا آنکھ مچولی کا کھیل نہ کھیلے، اداروں کے سپرد کرے، خود بجائے بیانات دینے کے اور ٹی وی چینلز پہ آ کے جملہ بازی کسنے کے قوم کو بتائیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. جیسے آج ایک سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی ہم 911 جو ہے وہ پورے ملک میں لے آئیں گے، جیسے امریکہ میں ہے، اس طرح دنیا کے جدید ممالک میں بہت بڑی سروس ہے. اگر یہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کو کرے. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی یہ نادرا میں ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ پہ کر رہے ہیں، یہ اس کا ایک بورڈ لگاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، اس کی خبر بناتے ہیں، لیکن نیچے گراؤنڈ پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہوتا. اب ان کو چاہیے نا، جیسے یہ مدنی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر، انہیں چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پوچھیں. دیکھیں جیل خانہ جات میں صرف ڈائیلاگ، ایکسائز ڈائیلاگ، ریونیو ڈائیلاگ، انہوں نے کام کہاں کیا ہے یہ خود بتائیں نا، ان کی کیا کارگزاری ہے. مہنگائی کی بات جو ہے ان کا اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. غیر روایتی طریقے سے دیکھیں وہ کام کچھ ایسے ہوتے ہیں کرنے کے جس میں خزانہ سے کچھ خرچ نہیں ہونا ہوتا. جیسے اجرت کا نظام ہے، پاکستان کو بھی ضرورت ہے، 50 سال پہلے یہ طے ہو گیا تھا برطانیہ میں، بلکہ 55 سال پہلے، کہ ہفتہ وار جو ہے تنخواہ دی جائے گی اور اس کا یونٹ گھنٹہ وار ہوگا. یہ لے آئے نا، اس پہ خزانہ تو خرچ نہیں ہوتا، یہ سسٹم لوگوں کو دیں. اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک لیٹسٹ پہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو 12-13 بڑے انڈسٹریل اور جو ٹریڈر گروپ ہے ان کو سب کو منافع ہوا ہے، کسی کو لاس، سب منافع میں ہے، لیکن عوام کو منافع نہیں ہوا. عوام کی جو ہے نا، اگر مہنگائی کے لیے خالی یہ نہیں کہ مجسٹریٹ جا کے پکڑ لے، عوام کے لیے اگر مہنگائی ہوئی ہے، چینی مہنگی ہوئی ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، گندم کی اضافی قیمت مہنگی کر دی گئی ہے، کماد کی اضافی قیمت جو ہے لگا دی گئی ہے، تو عوام کی اجرت بھی بڑھنی چاہیے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہونا چاہیے. اس کے ذمہ دار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب انہیں دینا چاہیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں نہیں ہو سکتا، اس ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. بس میں اتنا یہ ضرور کہوں گا سر، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، اختیار جب ان کے پاس ہوتا ہے، یہ نہ کہیں کہ ہم بے بس ہیں. اگر یہ اختیار کے ساتھ جو شخص کہتا ہے میں بے بس ہوں، اسے وہ اختیار چھوڑ دینا چاہیے، اور جو کہتا ہے میں اختیار میں رہ کے بھی بے بس تھا، مجھے دوبارہ اختیار دو، اس کو بھی اختیار نہیں ملنا چاہیے. یہ ماشاء صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اداروں میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں خاص طور پر جتنی تیزی سے بیوروکریسی کی چینج ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ طریقہ کار نہیں ہے. یعنی آدمی کو افسر آتا ہے، کم سے کم انیشل 3 سال ہوتا ہے کہ وہ کام کرے، ایکسٹینشن یعنی لائبل ٹو ایکسٹینڈ ہوتا ہے. یہاں 6 آئی جی بدلتے ہیں، 7 چیف سیکرٹری بدل جاتی ہیں، سی سی پی کا صاحب ہی کوئی نہیں ہے، آر پی او کا کوئی صاحب ہی نہیں ہے، سیکرٹریز بدلتے ہیں، فیڈرل سیکرٹریز بدل جاتے ہیں. کون کب یہ اس طرح کا حالات میں کیا کوئی بہتری کی امید رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب تک سب کچھ سیاست میں اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز، مگر یہ ہر دھرمی کا گیم نہیں ہے. یہ اگر آپ انسسٹ کریں ایک ہی بندے کے اوپر، آپ سب کچھ لگا دیں کہ یہ وسیم اکرم ثانی ہے، تو بات نہیں بنتی. چلے میں مانتا ہوں کہ بیوروکریسی سپورٹ نہیں کر رہی، آپ 1 چینج کریں، 2 چینج کریں، 4-5 کر دیں، مگر تمام ٹیئرز کے اوپر بیوروکریسی چینج کر کے ایک بندے کو آپ چینج نہیں کر رہے اور آ کے سب کے سامنے کہے جناب یو آر ارریپلیسیبل، تو اس میں کوئی گھبراہٹ یہ کہ ایک واقعہ ہوا ہے منار پاکستان پر، آپ نے ساری پولیس بدل دی. میں اب اس کو آگے چلتے ہیں نا تھوڑا سا لے جا کے. دوسری بات، اب آپ بات کریں اپوزیشن شوڈ بی ٹیکن ٹو کانفیڈنس. دیکھیے، یہ آپ کے ٹی وی چینل کا سوئچ نہیں ہے ٹیکن ٹو کانفیڈنس. جب یہی شخص 20-22 سال کی اسٹرگل کر کے آتا ہے، آ کے بات کرنا چاہتا ہے، آپ یو بو ہم آؤٹ، شور شرابہ کر کے اس کو بولنے نہیں دیتے ہیں. وہ کس منہ سے آگے بات کرے گا؟ 3 سال پرانی بات ہے نا، اب کیا دیکھیے، کام کرے بس، زبان کا زخم، اسمبلی میں جانا کوئی ضروری نہیں، کام کرے بس. وہ کام تو کر رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کر رہا. مجھے بتائیے، پہلے کام ہوتا تھا پارلیمنٹ میں، آپ جناب 104 ٹرپ تو باہر کی لگاتے ہیں 4 سال میں، اور پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں سال میں 4 دفعہ.
ये नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। अब तो कम से कम ये होता है कि हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा कैबिनेट मीटिंग्स हो रही हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सेक्रेटरीज आके ब्रीफ कर रहे हैं, मगर उनका रिजल्ट वो नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, हैंडसम इज एज हैंडसम डस। अब बात करते हैं, नुक्स कहाँ है? महंगाई बढ़ गई, सिस्टम में है नक्स, सिस्टम महंगाई नहीं, ये सिस्टम की बात नहीं है। सिस्टम बदलना पड़ेगा। इस सिस्टम बदलने के लिए पीटीआई आई थी, Exactly. अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। और उन्होंने लिए कौन से बंदे हैं, इसको थोड़ा मैं पीछे चले जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके जाता हूँ, उसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। एक बंदा आप ASI भर्ती करते हैं, मगर आप सिफारिश पे भर्ती करते हैं, मेरिट पे नहीं है, वो अहलियत पे नहीं आया। अब 20 साल के बाद वो DSP बन जाता है। आपकी जब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो DIG बना हुआ है। अदालतों में ये केस ले लीजिए, कहाँ से वकील को उठा के कहाँ लगा दिया। अब आप मुझे बताइए, भुट्टो ने एक सिस्टम बनाया था, एवरी पीपल्स पार्टी बात की थी आगे पीछे, ग्रेड 1 to grade 22, और उसमें एक इक्विवेलेंस थी, इकोनॉमिक इक्विवेलेंस थी, बजटिंग का हिसाब किताब था। आप बताइए, आपकी जुडिशरी क्या वो फॉलो कर रही है? आपका एक जज जो है 4 जनरल जितनी काफी गुंजल है ना। हुकूमत फिलहाल जो है वो किस फील्ड में कामयाब है? क्यों नहीं किया उन्होंने? हुकूमत के पास जब एक मैंडेट देते हैं तो हुकूमत का काम है कि उसको करे, स्टीम रोल करे। अगर अच्छा, वो मैं नहीं आपको एक करते, सवाल करता हूँ क्योंकि फिर आगे बढ़ाना था। मुझे बताइए कि ये जमहूरियत पूरी दुनिया में है और ये है कि ब्यूरोक्रेसी हर दुनिया में होती है, ऐसी भी बात कोई नहीं है। मिनिस्टर जो होता है वो अवामी आदमी होता है, उसको ज़्यादा तजर्बा होता है, बेशक वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो अपनी ब्यूरोक्रेसी को चला सके, गाइड कर सके, वो अच्छा मशवरा दे सके, उसके कान भी खींच सके, उस पर नज़र रखे, और उसकी करप्शन अगर करता है तो उसको रोके और आप उसमें शामिल ना हो जाए। तो ये सारा हो रहा है। आपने पहली बात जो कही है ना, वो 100% दुरुस्त है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं हो रहा है, ये नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब हमारी जमहूरियत जो है ये बरतानवी तर्ज हुकूमत है, अमरीकी या फ्रांसीसी तर्ज हुकूमत नहीं बरतानी होती, बरतानी में ऐसी है जमहूरियत। मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जब वो एक बंदा आता है पार्लियामेंट में, 2 पार्टी है ना प्राइमरीली, जब वो आता है तो ऑलरेडी टोटली कंप्लीटली ट्रेंड होता है। दे हैव समथिंग कॉल्ड शैडो कैबिनेट, और उसको उतनी ही ब्रीफिंग्स होती हैं जितनी दूसरी होती है। आप मुझे बताइए कि ये तो एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं थे, उनको आपने ब्रीफिंग्स कैसे देनी थी? ये हमारी जमहूरियत की बहुत बड़ी खामी है, इंस्टीट्यूशनल खामी है, जिसके ऊपर बैठ के आपको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट में होता क्या है, ये बंदा जेल में है, आप इसको पार्लियामेंट सेशन के लिए बुला लीजिए। जेल में क्यों है? इसने 25 अरब का करप्शन किया है। ये करप्शन क्यों आया है? जी मुझे तो पता नहीं, मैं सियासत में बड़ा बिजी था, किसी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। जब हमारी सियासत की ये हालत है, एक साहब हैं जेल में 3.5 साल से, पता लगा कि भाई ये जेल में तो नाम के थे, ये हॉस्पिटल से घर में थे, 5 स्टार से। उन्होंने ये भी तो कहा है कि अगर ये मुस्लिम लीग नून का लीडर होता तो ये बाहर ही होता, ये तो पीपल पार्टी का अगर शहबाज शरीफ होता तो अंदर होता। कहा देखिए, अब बताइए आप, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपने इसको उभार के तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस तरह से हम जमहूरियत चला रहे हैं, मैंने हैसल कौम, हम पाकिस्तानी, क्या हम जमहूरियत के लिए फिट हैं? नहीं। अच्छा, राणा साहब के आते हैं, अफगानिस्तान में 2 मिनट लेना। राणा साहब, आप को तो ये सूट करती है चीज़ें, वैसे तो टीवी पर आप यानी धुआंधार तकरीरें करते हैं, जी खाद महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है, इंसाफ नहीं मिल रहा, ये सूट नहीं करती कि आप तो मज़े से हैं कि भाई काम इनसे नहीं हो रहा तो अपने लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं? नहीं, इकबाल साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा एक हल्का है, और शाहकोट वारपटर में कल था। आप यकीन करें, जब हमारी हुकूमत थी पंजाब में, मैं चीफ विप असम्बली का था या कैबिनेट मेंबर था, लोग हमारा गिरबान पकड़ते थे, हम जवाबदेह होते थे हल्के में भी और आम जगह पर भी। आप ये देखें, जब हम कहते हैं कि हमने किसान कार्ड दे दिया, तो जो DAP की 2500 की बोरी थी डॉक्टर साहब, वो 6000 से 7000 की हो चुकी है, और कोई पूछने वाला नहीं। आज क्योंकि मुंजी के लिए DAP की जरूरत है, जब गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर कर दिया, तो फिर कौन कोई होता है, मैं हूं, कोई हो, कौन होता है वायलेशन करने की? फिर मैं अर्ज करूंगा, जो बिजली का फ्लैट रेट था ट्यूबवेल का 5 रुपए 35 पैसे 2.5 साल पहले, आज वो 14 रुपए हो चुका है, और 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वो 24 रुपए का हो चुका है जिम्मेदार के लिए। फिर मैं अर्ज करूंगा कि 31 मई 2018 को आपका डाल्टा घी 130 रुपए किलो था, आज 360 रुपए हो चुका है।
सरिया जो इस्तेमाल हो रहा है, जो गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है डेवलपमेंट और तरक्याती कामों का, तो सरिया जो 65-70 रुपए किलो था वो 170 रुपए किलो हो चुका है। सीमेंट की बोरी 400 सवा 4 आज 670 की हो चुकी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम होते तो हम जिम्मेदार, आज की हुकूमत जिम्मेदार है। फिर मैं अर्ज करूंगा 23 साल की कारकर्दगी पीटीआई की, बहुत अच्छी बात है, ये बात बहुत अच्छी लगती मुझे। अगर डॉक्टर मदनी होते सीएम पंजाब तो मैं कहता भी डॉक्टर मदनी को तो मैं 10 साल से देख रहा हूं। अब उस्मान बुज़दार यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूं, हमारा टिकट होल्डर था 2013 से 2018 तक, हार गया था एमपीए और फंड लेता था बतौर उम्मीदवार, और वो जून तक तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा था, उसको पीटीआई की मेंबरशिप नहीं की। आज वो सीएम पंजाब है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है, जो एडमिरल साहब ने बात की, वो सवालिया निशान है। चौधरी सरवर साहब हमारे गवर्नर थे, तो आज उनकी एफिलिएशन उधर है, डिलीवर करना। नहीं, फिर आपके साथ मिले हुए अब भी? मैं नहीं, हमारे साथ मिले हुए नहीं, मैं बात कर रहा हूं मेरिट की विद इन पार्टी। अब देखना नहीं, ये इल्जाम तो है कि अब आपके बंदे आपने छोड़े हुए हैं, इसीलिए मरीम नवाज शरीफ पे कहती है नहीं कराना। आप ये बात करें कि मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हम कब कहते हैं कि हम अदम एतमाद कर रहे हैं? हम तो कहते हैं गवर्नमेंट डिलीवर करे। शहबाज शरीफ ने जो आज भी बात की है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं, शहबाज शरीफ ने इस जो आपका असेंबली सेशन था, जो बजट था, उस पर भी ये कहा था कि आप आगे बढ़े। हम जब मसाके मशीयत की बात की तो हमारा मजाक उड़ाया गया। अपोजिशन लीडर अब भी 7 माह जेल काट के आया है, हम अस्पतालों में नहीं रहे, और शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी नहीं लिया। मुझे बता दें, और कार्ड बात कर रहा हूं, 7 माह में शहबाज शरीफ जेल में रहा, एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दी और ना अवेल किया। जब अपोजिशन लीडर को आप गिरफ्तार करवाएंगे और बात करने का मौका नहीं दें, हमने तो नहीं खान साहब से कहा था कि मोदी जीतेगा तो 370 आर्टिकल और 35 का खात्मा करेंगे, वो कहते थे, लेकिन खान साहब कहते थे कि मोदी जीतेगा तो कुछ भी। पूरी दुनिया में इंडिविजुअल क्राइम जो है, मसले का आदमी चोरी करता है और वो कोई कत्ल करता है तो सजा देता है। पंजाब की जितनी हाउसिंग सोसाइटी है, वो गरीब रिटायर्ड लोगों के प्लाटों पर कब्जे करके, मैं समझता हूं कि इतना कानून हाथ में लिया हुआ है, ना एलडीए पूछता है ना कोई और पूछता है, वायलेशन। और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का रोल क्या है? कीमत मुकर्रर हो, जो वायलेशन करे वो नून का हो, पीटीआई को। फिर खान साहब ने चीनी पर एक्शन लिया, रिपोर्ट आ गई, आज 110 से 15 रुपए किलो चीनी है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? और तरीन साहब जो राजा रियाज ने बात की थी, हमारी बात कोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट चले जाते हैं, वो क्या करेगा? गवर्नमेंट कहां है, एग्जेक्टिव कहां पे है? वो नजीर चौहान पकड़ा गया, 3 दिन बाद माफी मांगी तो वो ठीक हो गया, और तरीन को कहा है फिर कि हमें जरूरत नहीं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं जो माफियाज हैं, वो जब आप देखना रजाक दाऊद बादशाह डैम का कंट्रैक्टर होगा और नदीम नहीं, वो आपके साथ आपकी हुकूमत में था, उसी दौरान कंट्रैक्टर था, उसी वक्त ठेका मिला। यह कमाल है, ये हमारे बताओ इकबाल साहब, ये आप टीवी वाले नाज़रीन सुन रहे हैं, ये आपकी हुकूमत का कंट्रैक्टर। हमने तो उसको टेकअप किया था। अब खान साहब ने उनको वजीर बनाया और खान साहब ने कहा ये कंट्रैक्ट जो है कोई हमारा फेडरल मिनिस्टर जो है वो बिजनेस नहीं करेगा, तो वो बिजनेस तो कर रहा है। नदीम बाबर जो है उसकी पावर कंपनी थी और वो मिनिस्टर पावर रहा। इसलिए मैं कहता हूँ मेडिसिन महंगी, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, 4 रुपए की रोटी थी ना, आज 12 से 15 रुपए की हो चुकी है। तो गवर्नमेंट मेहरबानी करे ना, कब एक्शन लेना है? बड़ा थोड़ा सिर्फ आधा मिनट। फिर आप बात करते हैं कि सरहदों की, मैं समझता हूं जब चंद हफ्ते पहले अपोजिशन तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें चीफ साहब भी आए थे, तो वहां पर डॉक्टर साहब इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस हुए थे और इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी। तो अगर कोई नहीं थे तो वज़ीर आज़म साहब नहीं थे वहां पर, तो देखना जब शर्त लगाई थी आपने कि वो नहीं आएंगे, हल्फा नहीं लगाई थी, हल्फा नहीं। और अगर हमारी शहायत को मानते, हम तो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, हम तो कहते हैं महंगाई खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें। डॉक्टर साहब जरा आप कंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि आपने जवाब देना राणा साहब की बातों का। ये बड़े कमाल तरीके से इनके अक्सर मामलात के अंदर मुनाफकत है, अल्लाह हम सबको हदायत दे। और मैं इमरान खान साहब को बिल्कुल कहता हूँ कि अब जो 1 साल है पौधे लगा रहे हैं, लेकिन जल्दी किसी को हमारी सिमत ठीक है, स्पीड स्लो है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ इमरान खान साहब को, और हम कहते रहते हैं कि वो क्रीज से बाहर निकलें और इंशाल्लाह इस साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी और हर तरह से होगी, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे गवर्नेंस हो। जो नहीं काम करता
उसको उठा के बाहर फेंकता माजिद है। साहब आपसे तो सवाल एक तशना रह गया है कि अफगानिस्तान में जितना अमेरिकन असला छोड़ के गए हैं उसका खदशा है कि वो कहीं सेल होगा, कहीं एक्सपोर्ट होगा, ये ज़रा एक मिनट में आपने बताना है कि ऐसा कोई खदशा तो नहीं है, क्योंकि ये डाटा तो इतना बड़ा है कि वो तो कोई 64,000 मशीन गन्ने और 176 त्यारे और इस किस्म की चीज़ें उनके काबू आ गई। देखिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रूसिया करके गए थे, अमेरिका ये करके गया है, मगर याद है कि सुपर पावर है, कितना भी लगे डिसीजन अब से कर रहे हैं, ये पिछले 6 महीने से छोड़ने की बात कर रहे थे। अब आप एक जहाज़ ले लें या एक टैंक ले लें, आज के जहाज़ और टैंक में या और कोरियन वॉर के या वियतनाम वॉर के टैंक में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, बॉडी वही है, लुक्स वही हैं, उतना इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसका हार्ट एंड सोल था वो निकाल के ले गए हैं, नंबर 1। नंबर 2 आपने कहा जी ये 26,000 और 3 लाख राइफलें थी। आपकी जो वाह फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं दे आर वर्ल्ड क्लास और दुनिया आके ख़रीद के लेके जाती है, तो इसमें छोड़ के गए उनको पता नहीं है। बहुत शुक्रिया, पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन आपने हमारा प्रोग्राम देखा, इसमें एक बात जो तशना वो रह गई थी कि कराची के जलसे के ही पस मंज़र में मुझे याद आ रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान बनाने में हमें क्या मिला। तो मैं फिर आज रिसर्च की, इंडियन मैंने वेबसाइट पर गया कि इस वक्त तकरीबन कोई 60 के करीब ये उनके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। एक नकवी साहब हैं जो यानी माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान ही जितनी आबादी इंडिया में मौजूद है 22 करोड़ या समथिंग इससे कम बेश, फेडरल सेक्रेटरीज यानी जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। और इस तरह नीचे आते जाएं वहाँ मुसलमानों का कोई हिस्सा है ही नहीं, और किसी इतने भी अगर इससे भी ज़्यादा कोई मदरसे वहाँ बना लेता तो सिवाय इसके कि मौलवी होता और इस किस्म की पार्लियामेंट में जाके और कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कोई ना बनता। पाकिस्तान की बहुत बड़ी नेमत है और सबको चाहिए कि इसकी खिदमत करें, और जो लोग बदबख्ती से इसको गालियाँ निकालते हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और पाकिस्तानी कौम को उनका एहतसाब करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।